My dear students, how are you? Today I am going to teach you the botany class, and our lesson is kingdom planting. In this lesson, our topic is the characteristics of this kingdom planting, and many more things we will take in this chapter, in this topic. First of all, we are going to describe some features of this kingdom planting. You know, you have already read in the previous classes, as I have told you, that this living world is composed of two big kingdoms. One is the animal kingdom and second is the plant kingdom. Zoology is concerned with the animals and botany is concerned with the plants. And these plants which we take in this kingdom planting include all multicellular plants. All multicellular plants, whether they are found on land or they are in water, fresh water or marine water, all plants are included in this kingdom planting. Major groups of this kingdom are algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. These are the major groups which are included in this kingdom planting. And now we are going to take the characteristics of this kingdom. As you have already read in your 9th class when you were reading the plant cell and the animal cell. The plant cell is covered by a cell wall, whereas animal cell is covered with the outing covering, that is the cell membrane. So first characteristic of this plant kingdom is that it has a rigid cell wall. The cells are covered with rigid cell wall. Then we see this outing covering of these plants, it's rigid because it is made up of cellulose. क्योंकि ये जो सेल वाल है ये सेलुलोज की बनी हुई है. And then number 2, second characteristic, show various modes of nutrition. यानी कि ये जो गिज़ा लेने की जो इनमें ये जो मतलब सलाहियत है वो किस तरह है, गिज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं. जैसे कि आप लोगों ने read in your 10th class, first chapter, which is about the life processes, and the first topic of that chapter is the nutrition. In that chapter, you have read about the plants. Their mode of nutrition is always autotrophic. So, some, not only some, but most of them are autotrophs. Most of the plants, they are green plants because of this green pigment. Because of this green pigment called the chlorophyll, which is the basic pigment for photosynthesis. Photosynthesis is the process in which green plants make their own food. Since they are green plants, they have chlorophyll, they make their food, they are autotrophs. So mode of nutrition in most of the plants is autotrophic. While some non-green plants, they are heterotrophs, they may be parasites or they may be insectivores.
Autotrophs means they make their own food, but heterotrophs means they get the food from other organisms which may be present in soil, in water, or in air. Some are parasites. Parasite means they live on other organisms and they collect or they मतलब हासिल करते हैं, वो हासिल करते हैं दूसरों से अपनी गिजा, उसको यहाँ से कोई फायदा नहीं देते लेकिन उन्हीं से गिजा हासिल करते हैं. And some are insectivores because they eat up insects. So this was about the characteristics of kingdom plantae. मैंने आपको शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं. तो उसके बाद हम लेते हैं पहला ग्रुप, फर्स्ट मेजर ग्रुप विच इज द अलगी. तो अलगी क्या है? अलगी एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है. उसका लैटिन वर्ड है अलगा. अलगा मीन्स सी वीड्स as collectively used for all chlorophyll being non-vascular thalloid organisms. अब अलगी के मतलब मैं आपको बताऊंगा कि अलगी क्या है. अलगी उन तमाम प्लांट्स के लिए नाम रखा गया है यूज्ड फॉर ऑल क्लोरोफिल बियरिंग, यानी वो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल मौजूद है. नॉन वेस्क्यूलर थैलॉइड ऑर्गेनिज्म, जानदार हैं ये ऑर्गेनिज्म्स हैं लेकिन है ये नॉन वेस्क्यूलर एंड थैलॉइड ऑर्गेनिज्म. तो ये समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि ये जो नॉन वेस्क्यूलर है इसका मतलब क्या है. नॉन वेस्क्यूलर मतलब क्या काम, इसका मायने है कि देयर इज नो जाइलम और फ्लोएम. से आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि वेस्क्यूलर बंडल जो है, वेस्क्यूलर बंडल उसमें आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. क्योंकि ये नॉन वेस्क्यूलर है, इसमें न तो जाइलम है नो फ्लोएम है वेल डेवलप्ड. एंड थैलॉइड का मतलब है कि ये जो प्लांट्स इस अलगी में जो प्लांट्स आते हैं उनमें रूट स्टेम एंड ब्रांच डिफरेंशिएटेड नहीं है. डिफरेंशिएट हम नहीं पहचान कर सकते हैं कि इसमें रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा और ब्रांच कौन से, एंड दैट इज द थैलॉइड. तो ये रहा अलगी के मतलब कि अलगी लैटिन वर्ड से आया है और इसमें कौन से मतलब प्लांट्स हैं, उनकी खूबियां खासियतें क्या है. तो सैलिड फीचर्स अब आगे देखते हैं. नंबर 1, अलगी इंक्लूड्स, अलगी में 30,000 स्पीशीज आते हैं विच आर जनरली एक्वेटिक, जो ज्यादातर एक्वेटिक हैं यानी जो पानी में देखे जाते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मैरीन वाटर में पाए जाते हैं. तो साइज वेरीज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक मीन्स which we are not able to see by our naked eye. वो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है. माइक्रोस्कोपिक टू फिलामेंटस फॉर्म. फिलामेंट फॉर्म मीन्स कि जो हम देख सकते हैं. फ्लैट. ऑल मेंबर्स ऑफ क्लोर, ऑल मेंबर्स ऑफ तमाम जो भी इसमें मेंबर्स हैं यानी जो भी इसमें प्लांट्स आते हैं वो क्लोरोफाइलस हैं, क्लोरोफिल मौजूद है उनमें. नॉन वेस्क्यूलर थैलोफाइटस है. और चौथा, दे कंटेन क्लोरोफिल ए, कैरोटीन एंड जिंथोफिल, यानी ये तीनों के 3 पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं. तो वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर कॉमन. इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है और इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी आता है. एसेक्सुअल क्या है? विच इज विदाउट सेक्स. तो वेजिटेटिव भी एसेक्सुअल का ही एक मतलब एक टाइप है. वो वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं, वही जमीन में डालते हैं, गाड़ते हैं, तो उसी से प्लांट बनता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है. वो है आइसोगेमी, एनआइसोगेमी एंड ऊगेमी. मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये मुख्तलिफ किस्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते हैं. और आइसोगेमी का क्या मतलब है? फ्यूजन ऑफ मोटाइल और नॉन मोटाइल आइसोगेमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली अलाइक. यानी ये जो आइसोगेमी, आइसो मीन्स सेम, तो क्या होता है ये जो इसमें गमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सेम होते हैं.
मोटा, चाहे ये मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल हो, दोनों किस्म के, यानी दोनों किस्म के, या तो फीमेल भी मोटाइल होगा और मेल भी मोटाइल होगा, या फीमेल नॉन मोटाइल होगा, मेल भी नॉन मोटाइल होगा। तो एक जैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली एक है और फिजियोलॉजिकली भी एक है। और जब ये दो गीमेट्स फ्यूज अप होकर जाइगोट बनाते हैं तो हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं इसमें मेल कौन सा है या इसमें फीमेल कौन सा है। तो एनाइसोगेमिक का मतलब है इसमें मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स आपस में मिल सकते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, और बड़ा जो होगा वो फीमेल का होगा और स्मॉलर वन जो होगा वो मेल का होगा। तो ये हुए एनाइसोगेमी। तो ओगेमी का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नॉन मोटाइल एग और ओवम विद स्मॉलर मोटाइल स्पोर। यानी ओगेमी में भी डिफरेंट होते, नॉन मोटाइल एग होता है या नॉन मोटाइल ओवम होता है, और ये स्मॉल मोटाइल स्पर्म के साथ मिलकर फ्यूजन करके जाइगोट बना सकते हैं। तो ये थे मतलब क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये साइलेंट फीचर में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्वड इन दिस अल्गी। तो इसके बाद लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे। इसमें 3 किस्म के लाइफ साइकिल देखे जाते हैं। एक है हैप्लोटोनिक, इसमें हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है, और दूसरा है डिप्लॉन्टिक, इसमें डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट है, और तीसरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी इसमें बोथ डिप्लॉइड भी और हैप्लॉइड भी इक्वली डोमिनेंट रहते हैं। तो मेरे बच्चों, आज हमने इस बॉटनी पोर्शन का जो नंबर लेसन 2 लिया है वो है किंगडम प्लांट। तो इसमें हमने थोड़ा अलग के मुद्दे मैंने आपको बताया। तो अगर कहीं पर आपको कोई मतलब समझ में नहीं आया होगा या कोई दिक्कत पेश आती होगी तो आप लोग मेरे साथ वो फोन पर राब्ता कर सकते हैं और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ। बाकी वसल्लम।